ایک مرتبہ حضرت امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ کے منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ خطبہ ختم ہونے کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میں ملک شام سے کئی مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں کوفہ میں کچھ سوالات کرنے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، یقیناً تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم یہ جو درہم و دینار کا سکہ استعمال کرتے ہیں تو یہ سکہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا تھا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ کے اس نیک بندے کے بارے میں بتائیں کہ جس نے ایک ہی وقت میں کسی کی دو بہنوں سے نکاح کیا تھا، جبکہ اللہ کی شریعت میں تو کسی کی بھی دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، لیکن وہ شخص کسی کی دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنے کے باوجود بھی اللہ کا نیک بندہ تھا، لہٰذا آپ مجھے اللہ کے اس نیک بندے کے بارے میں بتائیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ کے ان 6 نبیوں کے بارے میں بتائیں کہ جن کے دو نام تھے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ کے ان 5 نبیوں کے بارے میں بھی بتائیں کہ جو عربی زبان میں بات کیا کرتے تھے۔ میرا 5واں سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے کہ جس پر اللہ نے وحی نازل کی، لیکن وہ مخلوق نہ ہی تو کوئی جن ہے، نہ ہی انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ۔ اسی طرح میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے کہ جس پر انسانوں نے جھوٹ باندھا، لیکن وہ مخلوق بھی نہ ہی تو کوئی جن ہے، نہ ہی انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ۔ میرا 7واں سوال یہ ہے کہ اللہ کے تمام نبیوں اور پیغمبروں میں حسب و نسب یعنی خاندان کے لحاظ سے سب سے زیادہ عزت والا نبی کون ہے؟ اور اسی طرح اب آخر میں میرا 8واں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے قرآن کی ان 5 آیات کے بارے میں بتائیں کہ جیسا کہ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ اور جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز کو بلند کیا جائے گا اور اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا اور اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا، اور یقیناً ہر انسان پر وہ دن آ کر ہی رہے گا کہ جس دن انسان کو اپنے علاوہ کسی اور کی کوئی فکر نہ ہوگی۔ لہٰذا اے جناب علی ابن ابی طالب، میں قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ جس ماں نے درد اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد مجھے پیدا کیا، جس باپ نے ساری زندگی مجھے سہارا دیا، جس بیوی نے ساری زندگی میری خدمت کی اور جس اولاد کے لیے میں ساری زندگی مشکلات کو برداشت کرتا رہا، تو اے جناب علی ابن ابی طالب، کیا قیامت کا دن اتنا خوفناک ہوگا کہ قیامت کے دن مجھے اپنے علاوہ میرے ماں باپ، بیوی اور اولاد کی کوئی فکر ہی نہ ہوگی؟ لہٰذا آپ مجھے قرآن کی ان آیات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں کہ آخر قیامت کے دن کیا ہوگا۔ دوستو، اب حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص کو اس کے ان 8 سوالوں کے جو جواب بتائے تھے، تو وہ جواب آپ کو بتانے سے پہلے یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو یہ واقعہ آج سے 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی احادیث کی ایک معتبر ترین کتاب عیون اخبار الرضا کے والیوم نمبر 1 کے باب نمبر 24 کی حدیث نمبر 1 میں واضح طور پر موجود ہے۔ تو بس پھر اب حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ انسانوں میں سب سے پہلے درہم و دینار کا سکہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ انسانوں میں سب سے پہلے سکے کو بابل کے ایک ظالم بادشاہ نمرود بن کینان نے ایجاد کیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ نمرود بن کینان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن تھا اور یہ آج سے قریباً 4000 سال پہلے بابل نامی ایک شہر پر حکومت کیا کرتا تھا۔ بابل کو انگریزی زبان میں بیبلون کہا جاتا ہے اور یہ شہر موجودہ دور میں عراق میں موجود ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے بابل یعنی بیبلون کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے 2 نبیوں کو بھیجا تھا۔ ان 2 نبیوں میں ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ تو بس پھر اب حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، اب تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کا ایسا کون سا نیک بندہ تھا کہ جس نے ایک ہی وقت میں کسی کی 2 بہنوں سے نکاح کیا، جبکہ شریعت میں تو کسی کی بھی 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اے بندہ خدا، پھر اب جان لو کہ وہ نیک بندہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں کسی کی 2 بہنوں خبار اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس نکاح کے بعد اللہ نے یہ حکم جاری کیا کہ اب کسی کی بھی 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد کسی بھی نبی کی امت کے لوگوں نے ایک ہی وقت میں کسی کی بھی 2 بہنوں سے نکاح نہیں کیا۔ دوستو، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا اور آپ کی اولاد
औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। और याद रहे कि बनी इसराइल से मुराद सिर्फ और सिर्फ यहूदी कौम है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि सारी दुनिया में यहूदियों का सिर्फ एक ही मुल्क है और उस मुल्क का नाम भी इसराइल है। और दोस्तों, बनी इसराइल की इज्जत और अजमत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अल्लाह ने कुरान में 25 नबियों का जिक्र किया है और इन 25 नबियों में से अल्लाह ने 13 नबी यानी आधे नबियों को तो सिर्फ इस एक ही कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा था। इसी वजह से दोस्तों, हमने जो तमाम अंबिया कराम का शजरा नसब बनाया है, तो उस शजरा नसब में हमने खास तौर पर ब्लू कलर यानी नीले रंग से जितने भी नबियों के नाम लिखे हैं, तो याद रहे कि उन तमाम नबियों को अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ कौम बनी इसराइल यानी यहूदियों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा था। तो बस फिर अब इसी तरह हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, अब तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि वो ऐसे कौन से 6 नबी हैं कि जिनके 2-2 नाम थे। तो ऐ बंदाए खुदा, जान लो कि हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम जुल्किफ्ल था। दोस्तों, हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा और जाननशीन थे। इसी तरह हजरत खज़र अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम हल्किया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम जुल्नून, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम मसीह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम अहमद है। इसी तरह अब तुम्हारा चौथा सवाल ये है कि वो अल्लाह के ऐसे कौन से 5 नबी हैं कि जो अरबी जुबान में बात किया करते थे। तो ऐ बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह के वो 5 नबी के जो अरबी जुबान में बात किया करते थे, तो उन 5 नबियों के नाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम्हारा 5वां सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी मखलूक है कि जिस पर अल्लाह ने वही नाजिल की, लेकिन वो मखलूक ना ही तो कोई जिन है, ना ही इंसान और ना ही कोई फरिश्ता। तो फिर ऐ बंदाए खुदा, अब जान लो कि वो मखलूक शहद की मक्खी है। इसी वजह से तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में ये इरशाद फरमाता है कि और देखो, तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी पे ये वही नाजिल की कि पहाड़ों में, दरख्तों में और घरों की छतों में अपने छत्ते बना और हर किस्म के फलों को खाती जा और अपने रब के साफ रस्तों पर चलती जा। इस शहद की मक्खी के पेट से पीने के लिए एक शरबत निकलता है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं और इस शरबत में अल्लाह ने लोगों के लिए शिफा रखी है और बेशक गौर फिक्र करने वाले लोगों के लिए इस बात में भी एक निशानी है। लिहाजा ऐ बंदाए खुदा, वो मखलूक है जिस मखलूक पर अल्लाह ने वही नाजिल की, लेकिन वो मखलूक ना ही तो कोई जिन है, ना ही इंसान और ना ही कोई फरिश्ता, तो वो मखलूक यही शहद की मक्खी है। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहद की मक्खी पे वही नाजिल की थी, तो इस बात का जिक्र कुरान में सूरे अन-नहल की आयत नंबर 68 और 69 में वाज़े तौर पर मौजूद है। इसी तरह अब तुम्हारा छठा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी मखलूक है कि जिस पर इंसानों ने झूठ बांधा, लेकिन वो मखलूक भी ना ही तो कोई जिन है, ना ही इंसान और ना ही कोई फरिश्ता। तो फिर ऐ बंदाए खुदा, जान लो कि वो मखलूक एक भेड़िया है और ये भेड़िया वो भेड़िया है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपके जिस्म से आपकी कमीज को उतार कर आपको कुएं में फेंक दिया और फिर रात के वक्त यूसुफ के भाई यूसुफ की कमीज पर खून के निशान लगाकर अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से आकर कहने लगे कि अहे बाबा, हमने यूसुफ की हिफाजत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस के अचानक एक भेड़िए ने यूसुफ को आकर खा लिया। अरे बाबा, ये यूसुफ की खून से भरी हुई कमीज इस बात को साबित करती है कि हमारे भाई यूसुफ को एक भेड़िए ने खा लिया है। लिहाजा ऐ बंदाए खुदा, जान लो कि वो मखलूक के जिस मखलूक पर इंसानों ने झूठ बांधा था, लेकिन वो मखलूक ना ही तो कोई जिन है, ना ही इंसान और ना ही कोई फरिश्ता, तो वो मखलूक यही भेड़िया है, क्योंकि किसी भी भेड़िए ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं खाया था। दोस्तों, याद रहे कि इस भेड़िए का जिक्र कुरान में सूरे यूसुफ की आयत नंबर 16 और 17 में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। इसी तरह अब तुम्हारा 7वां सवाल यह है कि तमाम नबियों और पैगंबरों में हस्बो नसब यानी खानदान के एतबार से सबसे ज्यादा इज्जत वाला नबी कौन है। तो ऐ बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह के तमाम नबियों और पैगंबरों में हस्बो नसब और खानदान के लिहाज से सबसे ज्यादा इज्जत वाला नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम वो नबी हैं कि जो खुद भी नबी थे, आपके बाबा याकूब भी नबी थे, आपके दादा इसहाक भी नबी थे और आपके परदादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी थे। दोस्तों, याद रहे कि सही बुखारी की हदीस नंबर 3490 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6161 के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि हस्बो नसब यानी खानदान के लिहाज से सबसे ज्यादा इज्जत वाले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। तो बस फिर अब इसी तरह आखिर में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, अब आखिर में तुम्हारा 8वां सवाल ये है कि तुम्हें कयामत के बारे में कुरान में मौजूद 5 आयात की तफसीर बताई जाए।
दोस्तों आखिरी सवाल का जवाब आपको बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको तमाम अंबिया कराम के इस शजरा नसब का तारुफ कराना चाहता हूँ, और ये तारुफ इस वजह से कराना चाहता हूँ क्योंकि अफसोस की बात यह है कि हमारे बच्चों को स्कूल से यूनिवर्सिटी तक अल्लाह के नबियों की सीरत और सुन्नत के बारे में बताना तो दूर, ये तालीमी इदारे स्कूल से यूनिवर्सिटी तक हमारे बच्चों को कभी भी अल्लाह के नबियों के नाम तक नहीं बताते। और इसी बदकिस्मती की वजह से ही तो आज हम अल्लाह के नबियों से इस कदर दूर हो चुके हैं कि अब ना हमें अल्लाह के नबियों के नाम आते हैं और ना ही हमारी औलाद को। तो दोस्तों इसी मसले को मद्देनजर रखते हुए हमने 1 साल की तहकीक और मेहनत के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया कराम के इस शजरा नसब को बनाया है, ताकि कम से कम हम अपने घर में तो अपने बच्चों को अल्लाह के नबी और पैगम्बरों के बारे में बता सकें। दोस्तों यहाँ पर ये बात याद रहे कि हमने इस चार्ट को खास तौर पर बच्चों की साइकोलॉजी यानी नफ्सियात को मद्देनजर रखते हुए बनाया है, क्योंकि साइंसी तहकीक ने इस बात को साबित कर दिया है कि बच्चे किताबों से पढ़कर किसी भी चीज को ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकते। लिहाजा इसी वजह से हमने किताबों की बजाय इस इंफोग्राफिक चार्ट को बनाया है, क्योंकि ये चार्ट विजुअल लर्निंग के जरिए आपके बच्चों के दिमाग में तमाम अंबिया कराम के सिलसिले का एक ऐसा नक्शा बनाएगा कि जिस नक्शे की मदद से आपके बच्चे तमाम अंबिया कराम के सिलसिले को बाआसानी हमेशा याद रख सकेंगे। और दोस्तों चूंकि किताबें तो सिर्फ पढ़ाई के वक्त ही बच्चों के सामने होती हैं, लेकिन अगर आप इस चार्ट को फ्रेम में लगवाकर अपने घर में लगा देते हैं तो इस चार्ट की वजह से आपके घर का माहौल इस्लामी और इल्मी एतबार से तो बेहतर होगा। लेकिन इसके अलावा जब ये चार्ट फ्रेम में हमेशा आपके बच्चों की आंखों के सामने रहेगा तो इंशाल्लाह आपके बच्चों में बचपन से ही अंबिया कराम के बारे में जानने का और तहकीक करने का भी शौक पैदा होगा। लिहाजा दोस्तों इसी वजह से हमने सबसे पहले तो बच्चों की नफ्सियात को समझा और फिर बच्चों में बचपन से ही अंबिया कराम के बारे में जानने का और तहकीक करने का शौक पैदा करने के लिए किताबों की बजाय इस इंफोग्राफिक चार्ट को बनाया। चूँकि हमने इस चार्ट को वाटरप्रूफ पेपर पर बनाया है, लिहाजा अगर आप इसे एक बार फ्रेम में लगवाकर अपने घर में लगा देते हैं तो फिर इंशाल्लाह ये चार्ट कभी भी खराब नहीं होगा। दोस्तों इस चार्ट में हमने तमाम अंबिया कराम के शजरा नसब के अलावा तमाम अंबिया कराम के बारे में और भी बहुत सी बुनियादी और जरूरी मालूमात को लिखा है। अगर आप उन मालूमात के बारे में जानना चाहते हैं या फिर तमाम अंबिया कराम के इस मुकम्मल और मुस्तनद शजरा नसब को हासिल करना चाहते हैं तो आप अभी हमारी वेबसाइट islamiccharts.com को जरूर विजिट करें। तो बस फिर अब आखिर में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब आखिर में तुम्हारा 8वां सवाल ये है कि तुम्हें कुरान में मौजूद कयामत के बारे में 5 आयात की तफसीर बताई जाए। तो जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में ये फरमाता है कि और जब कानों को फाड़ देने वाली आवाज को बुलंद किया जाएगा और उस दिन इंसान अपने भाई से दूर भागेगा, अपनी माँ से दूर भागेगा, अपने बाप से दूर भागेगा, अपनी बीवी से भी दूर भागेगा और अपनी औलाद से भी दूर भागेगा। और यकीनन हर इंसान पर वो दिन आकर ही रहेगा कि जिस दिन इंसान को अपने अलावा किसी भी और की कोई फिक्र न होगी। तो ए बंदाए खुदा, अब जान लो कि कुरान की इन आयात के पीछे छुपा हुआ राज ये है कि कयामत के दिन आदम का बेटा काबिल ये कहेगा कि ऐ काश मैंने दुनिया की खातिर अपने भाई को नुकसान ना पहुंचाया होता और अपने बाप आदम के खुदा पर ईमान लाया होता। आज तो मुझे अल्लाह के गजब से कोई नहीं बचा सकता। लिहाजा ए बंदाए खुदा, कयामत का दिन एक ऐसा दिन होगा कि जब एक भाई भी अपने दूसरे भाई को ना बचा पाएगा। हजरत नूह का बेटा केनान ये कहेगा कि ऐ काश मैंने दुनिया में अपने बाप नूह के खुदा पर ईमान लाया होता। आज तो अल्लाह के अजाब से मुझे मेरा बाप नूह भी नहीं बचा सकता। लिहाजा ए बंदाए खुदा, कयामत का दिन एक ऐसा दिन होगा कि जब एक बाप भी अपने बेटे को ना बचा पाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुरब्बी बाप आजर ये कहेगा कि ऐ काश दुनिया में मैं इब्राहिम के खुदा पर ईमान लाया होता। आज तो अल्लाह के अजाब से मुझे मेरा बेटा इब्राहिम भी नहीं बचा सकता। लिहाजा ए बंदाए खुदा, कयामत का दिन एक ऐसा दिन होगा कि जब एक बेटा भी अपने बाप को ना बचा पाएगा। इसी तरह अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ये कहेगी कि ऐ काश मैंने दुनिया में अपने शोहर लूत से वफा की होती और ऐ काश मैं दुनिया में अपने शोहर लूत के खुदा पर ईमान लाई होती। अफसोस कि आज तो मुझे दोज़ख की आग में जाने से मेरा शोहर अल्लाह का नबी लूत भी नहीं बचा सकता। लिहाजा ए बंदाए खुदा, जान लो कि कयामत का दिन एक ऐसा दिन होगा कि जब ना शोहर अपनी बीवी को और ना ही बीवी अपने शोहर को बचा पाएगी। बस ए बंदाए खुदा, कयामत का ये दिन इतना खौफनाक होगा कि आम इंसान तो दूर बल्कि अल्लाह के ये सब नबी भी अपने घर वालों तक को अल्लाह के अजाब से नहीं बचा पाएंगे। लिहाजा ए बंदाए खुदा, जाओ और जाकर उस दिन की तैयारी करो कि जिस दिन तुम्हारे आमाल के अलावा ना ही तो तुम्हारा माल और ना ही तुम्हारी औलाद तुम्हारे किसी